Silence, please. Let's start. Perry, Check. volume up. यार आप लोग जो पीछे खड़े हैं प्लीज बैठ जाएंगे. अगर आप स्नैक्स अभी रोक देंगे 2 मिनट के लिए रोक दीजिएगा, नहीं तो बैठेंगे नहीं. Nikhil, all the way. Right, then we are about to begin. If everyone can settle down. Good evening, ladies and gentlemen. It's my real privilege and an honor to be hosting this event today, to be in the midst of such superstars of sports, people who have made our chests swell with pride, as it has happened with me. I'm sure it's happened with you too. The next 1 hour promises to be very exciting, very enlightening, because not only will you get to see these superstars and the dignitaries that are present on the stage, you'll also get to hear from them. But before we kickstart the proceedings, I'd like to request the members of the men's hockey team, if you can all come and line up here. The members of the men's hockey team, if everyone can just come up and stand here. Yeah, facing that side. Shrijesh, the team needs to face that there. Just stand here. Could I also ask the dignitaries to come and stand here? And everyone in the audience, if you can stand, we are going to start with the national anthem. So if I can have everyone standing. Photographers, please, back. Can I request the photographers, आप please पीछे चले जाएं, नहीं तो हम शुरू नहीं कर सकते. Silence. Silence on the floor, please. Silence. The hockey team can stay here if everyone can just take their seats. अगर हॉकी टीम यहाँ पे खड़ी रहेगी, आप लोग अगर पीछे बैठ जाएंगे, थोड़ा पीछे आ जाएं, एक फोटो आपके लिए. Thank you very much. अच्छा, पिछले जो 2 हफ्ते में हमने अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर देखा, उसके बारे में कई शब्द क्या इस्तेमाल किए जाएं to describe what we've just witnessed. Can I please request the camera person here to sit down? Otherwise we cannot proceed with the event. तो कुछ शब्द जो मेरे जहन में आए, आप लोगों के भी जहन में आए होंगे. हिस्टोरिक है ये जो अचीवमेंट हमने देखी, अनप्रेसिडेंटेड थी, रिकॉर्ड ब्रेकिंग थी. क्यों था ये सब? अगर मैं कुछ आपको आंकड़े बताऊं तो this has been the best ever medal haul for the Indian Olympic contingent.
जो लंदन का रिकॉर्ड था 6 मेडल्स का, उसको तोड़ा 7 मेडल्स के साथ। और इसके साथ क्या हुआ, आप टॉप 50 में फिनिश करने में कामयाब हुए। इंडिया फिनिश एट द 48th स्पेस। अगर आप सारे मेडल्स का टोटल देखें तो इंडिया फिनिश्ड इन द 33rd पोजीशन, विच पिछले 4 दशकों में हैज बीन द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय इंडिया। एंड वाइल फॉर ऑल ऑफ दिस, behind the scenes, it's the blood, sweat and tears of all these athletes, the coaches, the trainers with them, psychologists with them, even people जो उनका nutrition का ध्यान रखते हैं. Everyone has played a major role. But I must also give you a larger picture, a macro picture, a vision which has helped us reach where we have today. And that was under the guidance of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, where we often refer to it in sporting parlance, हम उसे कहते हैं G to G approach, which is, you know, from ground to global. अब ये कहने में तो काफ़ी आसान लगता है, बट इसके कई छोटे छोटे कदम उठाए गए। ग्राउंड यानी आप ग्रास रूट्स को देखते हैं। ग्रास रूट्स में आपके पास खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम्स हैं जो एंश्योर करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खेल खेलें। ज़्यादा खेलने से ये है आपका जो टैलेंट पूल बढ़ता है, टैलेंट पूल बढ़ता है तो आपके एलीट एथलीट्स बढ़ते हैं। And once they reach the elite level, that is where the second approach comes into play, which I said is global, which is what we call something like the top scheme, which comes in and arranges for tailor-made programs for these elite athletes, which then allows them to have this kind of performance from them, to have this kind of training facilities, traveling abroad and all of that. Now, without further ado, before we get into the details, let me now introduce the panel that are joining us this evening. I'll start in no particular order with Minister of State for Sports and Youth Affairs, Nishit Pramanik ji. We've also got with us Minister of Sports and Youth Affairs, Shri Anurag Thakur, Minister of Law and Justice, Shri Kiran Rijiju ji. And then our medal winners, none of them need any introduction. आप सब उनको जानते हैं। यहाँ पर रवि धैया मौजूद हैं, मनप्रीत सिंह द कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी टीम, नीरज चोपड़ा है, लवलीना बोरगोहेन है, एंड बजरंग पुनिया यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा जो और डिग्नेटरीज हमारे साथ हैं, वी हैव सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स श्री रवि मित्तल जी विद अस। हमारे साथ सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स मैडम उषा शर्मा इज ऑन द स्टेज विद अस। प्रेसिडेंट ऑफ IOA डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा यहाँ पर मौजूद हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया श्री संदीप प्रधान जी हैं हमारे साथ। एंड बिफोर वी गेट इनटू द प्रोसीडिंग्स, मैं जानता हूँ कि आप सारे एथलीट्स से सुनना चाहते हैं, उनकी फेलिसिटेशन होगी, लेकिन उससे पहले मैं हमारे 2 मिनिस्टर्स से सुनना चाहता हूँ। और इसलिए नहीं क्योंकि वो मिनिस्टर्स हैं, इसलिए क्योंकि वो स्पोर्ट्स फैंस हैं। जैसे मेरे जहन में कई शब्द आए थे, मैं जानना चाहता हूँ ये लोग क्या सोच रहे थे, ये लोग जब देख रहे थे ये इवेंट्स, उनके जहन में क्या चल रहा था। निशित प्रमाणिक जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा, इफ़ यू कैन एड्रेस अस प्लीज। आदरणीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, कानून मंत्री एवं पूर्व खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष श्री नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी एवं महासचिव राजीव मेहता जी, खेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी श्री रवि मित्तल जी एवं श्रीमती उषा शर्मा जी, और हमारे देश की गौरव सभी पदक विजेता लावलीना जी, रवि दहिया जी, बजरंग पुनिया जी, नीरज चोपड़ा जी, हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों एवं कप्तान मनप्रीत सिंह जी को भी मेरा सादर प्रणाम। आज इस खुशी की सन में, खुशी की पल में इतने सारे ओलंपिक के जो विजेता है, जिनके लिए देश की शान, देश की तिरंगा, देश की ध्वज शान से लहराया, सभी के बीच में उपस्थित हो पाकर अपने आप को गौरवान्वित समझता हूं। आज सभी खिलाड़ी यहां पर उपस्थित है जो भारत की शान को बढ़ाया। एक खिलाड़ी के लिए वो पल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज्यादा गर्व की होता है, जब उनकी उत्तम प्रदर्शन के कारण से, उनकी उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण से देश की झंडा शान से लहराते हैं। और आज यहां पर सारे खिलाड़ी उपस्थित हैं। मैं
ये सोचता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने जो सपना देखा था कि भारत की हर एक प्रांत, चाहे वो छोटा सा गांव हो, चाहे वो शहर हो, वहां से प्रतिभाओं को ढूंढ के निकालकर हर एक छोटा से छोटा गांव से जो खेल प्रतिभा है उनको ढूंढ के निकालकर वो विश्व के स्तर में उनको लाना है। और उनका जो सपना है, उनका सपना धीरे धीरे साकार होते हुए हम लोग देख रहे हैं। ये सबसे बड़ा आनंद की चीज है। आज भारत की खेल मंत्री, पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू जी यहां पर उपस्थित है एवं वर्तमान खेल मंत्री आदरणीय अनुराग जी भी उपस्थित है। मैं उन लोगों को भी तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने देखा जिस तरह से हर एक छोटा से छोटा विषय पर ध्यान दिया गया। ओलंपिक के लिए हम लोगों का जितना भी खिलाड़ी भारत की प्रतिनिधित्व करने के लिए टोक्यो पहुंचा, उन लोगों के छोटा से छोटा समस्या को भी हल करने के लिए जिस तरह से दोनों आदरणीय मंत्री ने हर वक्त बत्रा जी के साथ बातचीत करता रहा और उसको समाधान करता रहा, इसलिए मैं तहे दिल से उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। और सबसे बड़ा चीज, जैसे कि महाभारत में भी अर्जुन ने द्रोणाचार्य के पास प्रशिक्षण लेके महावीर महायोद्धा बना, वैसे ही मैं सोचता हूं यहां पर उपस्थित हर एक विजय खिलाड़ी के पीछे एक एक द्रोणाचार्य है, एक एक गुरु महागुरु है। आज यहां पर उपस्थित सारे जो प्रशिक्षक हैं, सारे गुरु महागुरुओं को भी मैं नतमस्तक प्रणाम करता हूं। आज आप लोगों की वजह से भारत की ध्वज शान से लहरा रहा है, इसलिए भारत की बेटी और भारत की सुपुत्रों को मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। आप लोग देश की गर्व हो, आप लोगों की वजह से देश की शान, देश की मर्यादा और वृद्धि हो गया। फिर से एक बार सभी को मैं नमन करके मेरा वाणी को यहां पर विराम देना चाहूंगा। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। मैं निवेदन करना चाहूँगा श्री अनुराग ठाकुर जी से कि अगर वो भी ज़रा हमारे साथ साझा करें, कैसा महसूस किया उन्होंने जब ओलंपिक गेम्स देख रहे थे। ये शाम ओलंपियंस के नाम है जिन्होंने भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। एक बार करतल ध्वनि के साथ हमारे सारे ओलंपियंस का जोरदार स्वागत, अभिनंदन किया जाए। और जिस तरह से तिरंगे का मान सम्मान टोक्यो ओलंपिक्स में हमारे एथलीट्स बढ़ा रहे थे और आप यहां पर भारत मां की जय कर रहे थे, एक बार जय घोष मैं लगाऊंगा, आप सब लोग साथ में कहेंगे भारत माता की। डिग्निटरीज ऑन द डाइस, Olympians, friends from the media, let me first congratulate our Olympians, our medalists, on behalf of 135 crore Indians for their outstanding performance and welcome back home. We are so proud of you, so proud of you. Tokyo Olympics was an Olympic Games of many firsts for India. भारत के लिए बहुत कुछ पहली बार हुआ है तो टोक्यो ओलंपिक्स में हुआ है। आज तक का सबसे बड़ा ओलंपिक दल इंडियन कंटिंजेंट 128 लोगों का गया। आज तक के सबसे ज्यादा मेडल जीते तो 7 ओलंपिक मेडल्स इस बार भारत के खिलाड़ियों ने जीते हैं। यही नहीं, एथलेटिक्स में 121 साल इंतजार करना पड़ा, लेकिन इंतजार जब पूरा हुआ तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर उसको पूरा किया है। राष्ट्रगान टोक्यो में बज रहा था,
लेकिन 135 करोड़ भारतीयों का सिर गर्व के साथ हिंदुस्तान और दुनिया के अलग अलग देशों में ऊंचा हो रहा था। नीरज जी, आपने केवल मेडल नहीं जीता, भारतीयों का दिल भी जीता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी एक प्रेरणा के रूप में आप यहां पर आए। मनप्रीत जी, मैं तो यही कहूंगा, मैं तो बत्रा जी के साथ हॉकी में भी था। 41 साल इंतजार छोटा नहीं होता। आपने और आपके साथी खिलाड़ियों ने भारत के लिए मेडल जीतकर देश के कोने कोने में जो जज्बा जुनून भरा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जोश और जीत की एक उम्मीद जो भरी है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जे मनप्रीत सिंह का नाम लेता तो रानी रामपाल का नाम भी लेना ही पैना है। हमारे जहां एक और पुरुष खिलाड़ियों ने, हॉकी टीम ने, वहीं पर महिला खिलाड़ियों ने भी ना केवल पहली बार क्वालिफाई किया बल्कि सेमीफाइनल में पहुंचकर भी शानदार जो आप खेले। मैं कहना चाहूंगा पूरे भारत को अपनी बेटियों पर गर्व है। यही नहीं, हम यही नहीं रुके, ये तो पहली बार सब हुआ है। अदिति अशोक ने जो किया गोल्फ में पहली बार, वो भी चौथे स्पॉट पर जाकर खत्म करना, बहुत क्लोज मैच किया, ये भी पहली बार हुआ है। भवानी देवी ने जो फेंसिंग में किया है, ये पहली बार हुआ है क्वालिफाई करना। यही नहीं, नेत्रा ने पहली बार किसी ने किया है हमारे सेलर के रूप में। और यही नहीं, एशियन रिकॉर्ड भी अगर ओलंपिक्स में किसी ने बनाया तो मेंस 4x400 मीटर ने हमारा हिस्ट्री इसमें क्रिएट किया, एशियन रिकॉर्ड बनाया है। बेस्ट एवर फिनिश फॉर इंडियन रोअर्स अर्जुन लाल और अरविंद सिंह ने रोइंग लाइटवेट डबल स्कल्स इवेंट में किया है। हमारे नेशनल रिकॉर्ड स्टेपल चेस में अविनाश साबले ने किया है। ऐसा मैं कहूं तो जो बहुत कुछ है जो पहली बार हुआ है, और ये पहली बार इसलिए हुआ कि आपने डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन में विश्वास किया। पूरी दुनिया कोविड की लड़ाई लड़ रही थी, आप भी लड़ रहे थे, लेकिन जहां एक और सरकार, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एंड टू एंड आपको सारी सुविधाएं देने का प्रयास किया, दुनिया भर के अलग अलग देशों में सुविधाएं देने का प्रयास किया, वहां पर आपने भी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी और भारत को रिकॉर्ड मेडल जिताने का काम किया। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वैसे नीरज जी, चूरमा और गोलगप्पे तो हम आपको भी खिला नहीं पाए, सिंधु को आइसक्रीम नहीं खिला पाए। अब प्रधानमंत्री जी जिस दिन बुलाएंगे तो सबको खिलाएंगे। और जिस देश के प्रधानमंत्री आपके जाने से पहले एथलीट से बात करें, हमसे पूछें किसकी ट्रेनिंग कहां पर चल रही, कैसे चल रही है, परिवार के लोगों का मनोबल गिरा तो नहीं है, किसी को कोविड तो नहीं हुआ, वैक्सीनेशन हुई कि नहीं हुई, और अगर हमारी टीम कोई हार भी गई तो अगले इवेंट के बीच में बात करके मनोबल बढ़ाने का काम भी जिस देश का प्रधानमंत्री करता हो, उसका नौजवान पीछे रुकने वाला नहीं। और खेल मंत्री के रूप में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, मैं तो स्वयं खिलाड़ी रहा हूं, और एक बात कहना चाहता हूं कि खेलों में आपको किसी तरह की कमी मेरे भाई किरण रिजिजू जी ने पहले नहीं रहने दी। मोदी जी के नेतृत्व में पहले ये खेल मंत्री थे, अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई है। मैं तो 25 साल की उम्र से अब तक 21 साल तक स्पोर्ट्स में अलग अलग फेडरेशन एसोसिएशंस में रहा, बीसीसीआई का अध्यक्ष भी रहा। इतना ही कहूँगा, आपने इस बार साथ लिए हैं तो अगली बार के लिए देश के हर कोने में, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक, लोगों के दिलों में आस जागी है। असम की बेटी लवलीना हमारे बीच में बैठी हैं, हमारे बीच में रवि दहिया, बजरंग पुनिया बैठे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इनको देखकर लाखों नहीं करोड़ों लोग खेल मैदान पर उतरेंगे, और जब आज का युवा उतरेगा तो मेडल जीतने की आस के साथ उतरेगा, और 24 और 28 की ओलंपिक में हम इस रिकॉर्ड को तोड़कर भी ज्यादा मेडल जीतने का काम करेंगे। आपने आज के हिंदुस्तान के युवाओं के बीच में एक नई एस्पिरेशन खड़ी की, आशाएं आकांक्षाओं को बढ़ाने का आपने काम किया है। और ये नया भारत जो है वो बहुत अलग सोचता है,
इस न्यू इंडिया के लिए आप न्यू हीरोज हैं। आज का कार्यक्रम हमने मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में करना था, लेकिन बारिश के कारण मौसम ऐसा था, नहीं कर पाए। मेजर ध्यानचंद जी के बाद मनप्रीत जी आपकी और आपकी टीम ने एक नई आस खड़ी की है। हमारे ओलंपियंस ने यहाँ पर खड़े होकर बहुत कुछ किया, हम आज इनको सुनना चाहते हैं। मुझे ज़्यादा नहीं कहना, मैं इतना ही कहूँगा, सरकार की ओर से कोई कमी नहीं आएगी। और जितनी फेडरेशंस यहाँ पर बैठी हैं, आदिल जी को भी मैं देख पा रहा हूँ, बत्रा जी को देख पा रहा हूँ और बाकी भी हैं, आपको ना हमने पहले कोई कमी छोड़ी, ना आपने कोई कसर छोड़ी, आगे भी नहीं छोड़ेंगे। इतना ही कहूँगा, सब इकट्ठे मिलकर करेंगे तो भारत नए रिकॉर्ड बनाता जाएगा। बहुत फर्स्ट हुए हैं, बहुत पहली बार बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जब एक बार शुरुआत होती है तो रुकने का नाम नहीं लेती। आपको भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। Thank you for those encouraging words, Honorable Minister. It's not that we are not going to hear from Honorable Minister Kiren Rijiju ji as well. We are saving him for the later part of the show. We won't let him go off this easily. But before that, I'd like to begin हमारी जो felicitation ceremony है, उसकी हम शुरुआत करेंगे. As Shri Anurag Thakur ji also said कि हम athletes को भी सुनना चाहते हैं. शुरुआत में बजरंग के साथ करूँगा. बजरंग पुनिया, जिनकी introduction को कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा आप तालियों से उनका स्वागत करें. 65 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता. बजरंग, अगर if I could request the three ministers please to come forward and give him a memento, a shawl as well as a bouquet. Check. बजरंग, इससे पहले आप जाएं, एक सवाल तो पूछना चाहिए आपसे. अच्छा, आप लोगों में से शायद ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, ओलंपिक शुरू होने से 1 महीने पहले इनकी चोट लगी थी नी में. हमने वो देखा मुकाबला अजरबैजान के रेसलर के साथ, जब आप लड़ रहे थे वो आपकी नी की तरफ जा रहा था. फिर जब आप आए अगले दिन, आपने कहा मैं नी कैप नहीं पहनूंगा. बिना नी कैप के वो आए उस इंजरी के साथ. उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं. देखिए, ओलंपिक में सभी का धन्यवाद जो इतना प्यार और सम्मान दिया है, और सभी का धन्यवाद जितना प्यार और सम्मान दिया है. आज देख के ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा से मेडल जीता है देश के लिए. और जो इंजरी की बात है, काफ़ी हेल्प मिली मुझे इस टाइम इंजरी में. जब भी बात करी इंजरी के लिए तो साई के जो हमारे डीजी साई हैं संदीप प्रधान जी, काफ़ी हेल्प करी मेरी रसिया में कि भाई किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है तो हमें बताइए. लगातार डॉक्टरों के टच में रहे, तो इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपनी तरफ से. और ये था कि भाई लास्ट बाउट थी मेरी. पहले तो मैं रिस्क नहीं ले सकता था. फिजियो बोले कि भाई आप टेप के साथ खेलो, तो उसमें सामने वाला ये नहीं देखेगा. सामने वाला भी मेडल के लिए आता है कि भाई हमें मेडल जीतना है, तो वो ये नहीं देखता कि भाई सामने वाले को इंजरी है, वो हमारी बाउट है. तो मैंने यही सोचा लास्ट बाउट है, अगर टूट भी जाएगा तो कोई नहीं, उसके बाद रेस्ट कर लेंगे, पर ये लास्ट बाउट है और ये ज़िंदगी बदल सकती है. तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करी. थैंक यू सो मच फॉर दैट बजरंग, थैंक यू. अब अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज द थ्री मिनिस्टर्स वंस अगेन टू can I request Lavlina Borgohen? You again are very familiar with her, winner of the bronze medal in the 69 kilogram women's boxing, only the second Indian women boxer to get that medal. Could I also request the coach of the boxing team, Santiago Nieve, if he's here if he could also come up for the felicitation, please.
लवलीना, आप अगर वो माइक ले सकते हैं प्लीज। सबसे पहले तो जानना चाहूंगा, वहां पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि कैसे लोग खुश हो रहे हैं इंडिया में, लेकिन असली फील आपने जब यहाँ लैंड किया तब क्या होगा, उसके बारे में कुछ बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है इंडिया आके। वहाँ पे तो पता तो था ही कि इंडिया के लोग बहुत खुश थे, हम लोगों ने मेडल लिया। और इंडिया आके मतलब इतना अच्छा लग रहा है, सबका इतना प्यार है। और हम लोग मेडल इंडिया के लिए लेके आ रहे हैं, सब कितना इंडिया के लिए मतलब शेयर कर रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हमारा बस यही कोशिश रहेगा कि आगे भी ऐसे देश के लिए मेडल लाते रहूं और देश का नाम रोशन करते रहूं। जब आप सेमीफाइनल में पहुंचे थे, उससे पहले आपने बोला था आपका पूरा फोकस गोल्ड की तरफ होगा। मैं ये जानना चाहता हूं, वो जो 2 या 3 दिन बीते थे बिफोर योर सेमीफाइनल, तब वो दिन कैसे बीते, क्या चीज़ों के बारे में आप सोच रहे थे? बस मैं यही सोच रही थी कि मुझे गोल्ड ही जीतना है, मुझे इंडिया को गोल्ड ही देना है। उस टाइम पे मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि मेडल मिल गया, ये भी नहीं सोचा था, बस मुझे गोल्ड ही चाहिए था, यही सोचा था। और आगे भी मेरा यही कोशिश रहेगी कि पेरिस ओलंपिक में मैं गोल्ड मेडल ही इंडिया को दिलाऊं। आखिरी सवाल, आपकी वो जो बाउट थी बहुत इंस्पिरेशनल थी, जब आप वर्ल्ड चैंपियन टर्की की जो बॉक्सर है उनके खिलाफ लड़ रहे थे, इतना जोश के साथ आपने ओपन फाइट लड़ी, इसके बारे में जानना चाहूंगा। कई बार क्या होता है, आप एक हायर रैंक बॉक्सर के साथ खेलते हैं तो थोड़ा ज़्यादा केयरफुल होते हैं, ज़्यादा ओपन फाइटिंग नहीं करते, क्योंकि लोअर रैंक बॉक्सर थोड़ा सा घबराता है। आपने वो नहीं दिखाया, आपने पूरा जोश जज्बा दिखाया, क्या थिंकिंग थी इसके पीछे? मैंने बस यही सोचा था कि हार जीत कुछ नहीं होते है, बस मुझे खेलना है, डरना नहीं है, बस अपना जितना भी है सब मैं उस गेम में ही दे दूं बस। Alright, ladies and gentlemen, Lovelina Borgohain, thank you so much. Now for the big one, because ये मेडल आप लोग सब जानते हैं 41 साल बाद भारतीय टीम ने जीता, और हॉकी हमेशा से हमारे इंडियंस के दिल के बहुत ही करीब है। ये मेडल आया, पर्सनली मुझे 2000 का ओलंपिक गेम्स याद आते हैं, दिल टूट गया था, सेमीफाइनल तक पहुंचते पहुंचते टीम रह गई थी। तो मैंने आते ही सबसे पहले जब मनप्रीत को मिला, श्रीजेश को मिला, सबको बोला जो 21 साल पहले दिल टूटा था ना, आप लोगों ने वो आज जाके जोड़ दिया। नाउ कैन आई रिक्वेस्ट द हॉकी टीम टू प्लीज कम फॉर द फेलिसिटेशन। एक एक करके मैं आपके नाम लूंगा एंड यू कैन कम ऑन स्टेज एंड आई विल रिक्वेस्ट द 3 यूनियन मिनिस्टर्स विद अस टू जस्ट कम हियर एंड फेलिसिटेट देम। सारे अगर आप लोग आ जाएं प्लीज, हॉकी प्लेयर्स यहाँ पर। मैं एक एक नाम लेता जाऊंगा, आप लोग आते रहें। Could I start with the man जिसको अक्सर हम लोग प्यार से the wall of India कहते हैं? Can I have Shrijesh please up on the screen first up? Harmanpreet Singh, please. मैं next नाम ले लेता हूँ. He can just stand. Birendra Lakra, if I can have him just standing there. Track pick specialist Harmanpreet Singh. Next is Birendra Lakra. Surendra Kumar, if I can have him next. और दर्शकों से मेरा निवेदन है कि तालियां ना रुके प्लीज. What these guys have done is historic, please. Next up, Amit Rohidas.
काफ़ी मेंबर्स इनमें से वो हैं जो जूनियर टीम का हिस्सा हुआ करते थे, वहाँ पर शानदार प्रदर्शन करा, उसके बाद सीनियर टीम में ट्रांजिशन किया इतने शानदार तरीके से। करीब आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 10 से 11 प्लेयर उस जूनियर टीम का हिस्सा है। गुरजंत सिंह प्लीज। अरुण कुमार। Next up is Simranjeet, he will be ready. इसके बाद है कृष्ण बहादुर पाठक। Simranjeet, please. The man with a magical hockey stick. बॉल छूटती नहीं आपकी हॉकी से। करूंगा नेक्स्ट टाइम, जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच। मैजिकल हैंड, मैजिकल स्टिक वर्क बाय सिमरनजीत। कैन आई हैव कृष्ण बहादुर पाठक प्लीज नेक्स्ट। नेक्स्ट अप नीलकांता। नीलकांता, the man who's filled with energy, मुझे ऐसे लगता है वो ड्यूरासेल बनी है, खत्म नहीं होती एनर्जी, moving from one end to the other. Fantastic burst of speed. Thank you. Next up, he's an Australian all right, but now we'll give him an honorary Indian citizenship. Can I please have Graham Reed come on stage? Mr. Reed, before I let you go, you have to tell me, I was very upset with you. 2014 Commonwealth Games, you were part of that Australian team that beat India 4-0. But tell me, what has changed in these boys from that team that you were up against to these boys that you were training? Finally, before I let you go, I give you this opportunity. Me being a journalist, we're very cynical, right? We always try and look for mistakes. And one mistake that everyone is trying to point out before the tournament started, Mr. Reed is taking such a young team to the Olympics. How are we going to do well? It's not going to happen for us. I'm one of those skeptics. Now is your chance to answer back. We were already beating Australia in cricket, now we'll do it in hockey too very soon. Thank you so much, Graham Reed. Last but not the least, जोर की तालियां हो जाएं हमारे कप्तान साहब के लिए, वो यहीं पर खड़े हैं. Can we please, मनप्रीत सिंह. मनप्रीत, एक चीज़ आपको एक नया नाम दे देता हूँ मैं, वो नाम है लव डॉक्टर. आपने बड़े हार्ट जोड़ दिए ना जो टूट गए थे इतने साल से, कैसा महसूस हो? बहुत अच्छा लग रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी का थैंक यू कहना चाहूँगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड IOA, क्योंकि इन्होंने काफ़ी डिफिकल्ट टाइम में भी हमारा काफ़ी हेल्प की. लास्ट ईयर क्वारंटीन के टाइम भी हम लोग बेंगलोर में थे, तो पर्सनली सर से तो मैं मिला था, तो सर ने तभी हमसे बात किया कि अगर किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है तो आप हमें डायरेक्टली बात कीजिए, आप DG साई से बात कीजिए, कि आप लोग सिर्फ
टूर्नामेंट के ऊपर फोकस कीजिए। आप अगर किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है, आप डायरेक्टली आप मांगिए, आप हमें आपको पूरा सब कुछ देंगे हम। तो आप सिर्फ अपनी गेम के ऊपर फोकस कीजिए। तो मैं कहना चाहूँगा थैंक यू सभी का कि इन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और जितने भी मेडलिस्ट हैं सभी को मैं कंग्रेट्स करना चाहूँगा कि इन्होंने देश का नाम रोशन किया है। और जैसे सभी को पता है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जैसे नीरज ने गोल्ड मेडल जीता है, तो सभी मुझे लगता है इसके लिए सभी लिए ताली बनती है यार प्लीज़। अब क्या पूछिए। ये पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने इतनी डेडिकेशन के साथ मेहनत करी ना, एक कैंप में लगे हुए थे, बाकी लोग फैमिलीज के साथ थे। अब दो चीज़ों की खुशी है, एक तो मेडल जीत लिया, कहीं ये भी खुशी चलो अब इनकी शक्लें नहीं देखनी पड़ेंगी कुछ दिनों तक। नहीं, क्योंकि एक्चुअली कि ये मेरी एक फैमिली है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एक साथ बिताते हैं। तो हम लोग को सभी को पता है कि किसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो मुझे लगता है कि श्री बस वापिस थोड़ा लेट आएगा क्योंकि उसको फैमिली को टाइम देना है, ठीक है। उसके बच्चे घर पे वेट कर रहे हैं, तो जल्दी हम लोग वापस आएंगे क्योंकि आगे आने वाले साल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे आगे एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स आ रही हैं, तो हम लोग अपना पूरा फोकस करेंगे। जल्दी आ जाओ, एक सवाल पूछ लेंगे फटाफट। वैसे जब तक बच्चे वाला आता है तब तक ये भी समझ लीजिए कि स्टेज पर लवलीना है, नीरज है, रवि है और अदिति अशोक भी है। इस चारों की उम्र मात्र 23 साल भी है। तो 23 साल की उम्र में भी उन्होंने भारत के लिए मेडल जीतने का काम भी किया है। ये बोल रहे हैं फैमिली का आप वेट कर रहे हैं। मैं इनके घर गया हूँ, एक तो बहुत ही अमेजिंग बनाना चिप्स वहाँ पे मिलते हैं खाने को आपको, और आपकी बेटी बोल नहीं रही मॉल लेके जाइए, वहाँ आपको ड्यूटी लगानी पड़ती है ना। देख केरला चिप्स बहुत फेमस है, सबको पता है। जब केरला में कोई भी आता है तो हम लोग वही खिलाते हैं। आई मीन डेफिनेटली जब आपको पता है कि जब इधर कितना भी लोग बैठता है, सबके पास सबका फैमिली का सपोर्ट की वजह से सब जीता है। या फैमिली सेक्रीफाइस वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। अभी इधर पता है कि मम्मी पापा होता है, जैसे जिसका शादी हो गया डेफिनेटली उसका बीवी का सपोर्ट मिलना चाहिए। बच्चे लोग अपना बाप को मिस कर रहे हैं, बीवी अपने पति को मिस कर रहे हैं, बट ये एक सब परिवार का सपोर्ट की वजह से हम लोग एक जीत पाते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। अभी आपको पता है कि हम सब एक परिवार है, और जब हम मेडल जीत के वापस इंडिया आता है, ये एक इंडिविजुअल का मेडल नहीं है, देश का मेडल है। आखिरी सवाल, इससे पहले मैं आपको जाने दूं, आपको हम ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं, आप तो जानते हैं टाइटल आपका ही है। क्या आपसे मैं ऑफिशियली पूछना चाहता हूं, आप सविता के साथ ये टाइटल शेयर करने को तैयार हैं, क्योंकि वो भी बिल्कुल वॉल की तरह ही खड़ी थी। मैं शेयर नहीं, मैं वो नाम सविता को देना चाहता हूं, क्योंकि जो तरीके से सविता ने टीम को बचा दिया, जो करेक्ट मोमेंट पे जितना सेव किया, डेफिनेटली शी डिजर्व दैट नेम। अनफॉर्चुनेटली वुमेन्स टीम मेडल जीत नहीं पाए, बट दैट वाज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस फ्रॉम देयर साइड। Alright, a round of applause then for our hockey stars. Thank you so much. Next up, can I request Ravi Dhaiya ji हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, silver medalist in the 57 kilogram men's wrestling category. हाँ, एक सवाल इससे पहले मैं आपको जाने दूं। पहले ये बताइए, ये आप ये चोटें लगी या होली खेल के आए? देखो चोटें थोड़ी बहुत तो हैं, गेम है हमारा, रेसलिंग ऐसा गेम है, थोड़ा बहुत इसमें होता रहता है। अच्छा, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी थोड़े हमारे दर्शकों को आप बताएं। वो ये कि जब आपने रेसलिंग की शुरुआत की, मैं कहीं पढ़ रहा था, तो शुरुआती 4-5 साल इतने अच्छे नहीं रहे, इतने आप परफॉर्म नहीं करते थे। फिर आप पता चला आयरन डेफिशिएंसी है, वो आपने इम्प्रूव करी। उसके बाद से कोई भी रवि धैया को रोक नहीं पाया रेसलिंग मैट में। उसके बारे में थोड़ा हमें बताएंगे। देखो जी, स्टार्टिंग हमारी होती है ना, तो बहुत ग्राउंड लेवल पे होती है। तो गांव में शुरू की, बिल्कुल गांव से थी, और उसमें बहुत मिट्टी से थी। उसके बाद हम दिल्ली आ गए स्टेडियम में, तो देखा अपने सामने, बड़े बड़े चैंपियनों को अपने सामने देखा। बिल्कुल 2008 में जब मैं आया था शुरुआत में, तो सुशील कुमार का मेडल आया था। 2012 में योगेश्वर दत्त और सुशील दोनों का आया, तो उनका मेडल था मेरे सामने। तो मैं भी देखता था कि इनका इतना सम्मान मिलता है,
तो बहुत खुशी होती थी देख के, भाई मेरे को भी ऐसा करना, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मतलब देखो कितना सम्मान मिलेगा। इनको देख देख के मैं आगे बढ़ा और मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रवि दहिया। इस बीच में दो कोचेस को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा, अगर स्टेज पे आए, जो रेसलिंग कोचेस हैं भारत के। जगमिंदर सिंह जी प्लीज़ अगर आप आ जाएं स्टेज पे, और उसके अलावा एमजारियोस बेंटनाइडिस, इफ़ ही कैन ऑल्सो कम ऑन स्टेज प्लीज़ फॉर द सेरेमनी। Arun Dhaiya ji also, if he can come on the. So I'll still request you to be here. One final felicitation we have, and that is the golden boy. अब मैं उससे आगे क्या कहूँ, जिन्होंने हमारा इतने साल का वेट खत्म किया, the first ever medalist in track and field, the first ever gold medalist in track and field for India, the new poster boy of Indian sport, Neeraj Chopra. Can I also request Mr. Prabhakaran Radhakrishnan, the Chief Athletics Coach of the Indian contingent, to come on stage, please? नीरज, सवाल नहीं पूछूंगा मैं आपसे, आपने सुन ली है तालियां, जरा इनको कुछ बोलिए। सबसे पहले तो हेलो, सबसे पहले तो सभी को नमस्ते, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत सपोर्ट किया। और मैं सबसे पहले तो ये दिखाना चाहूंगा, गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं, पूरे इंडिया का है। और मैं उस दिन से ही अपनी जेब में लेके घूम रहा हूँ मेडल को। मैं सही बताऊं तो उस दिन से सही तरह से सो नहीं पाए हैं, खा नहीं पाए हैं, लेकिन जब भी मैं एकदम इसको निकाल के देख लेता हूं ऐसा लगता है कि यार सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मेहनत तो अच्छी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये था मन में कि यार बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर हैं हमारे, और मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 4 चल रही थी और कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त था वहाँ पे। लेकिन क्वालिफिकेशन राउंड में जैसी थ्रो लगी और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लाइफ का सबसे जो तगड़ा मौका है ओलंपिक्स, और ये मैं नहीं छोड़ूंगा। और मुझे लगता है कि अपोनेंट को देख के और कॉम्पिटिटर को देख के कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे पहले ओलंपिक में, क्योंकि इतना अच्छा कंपटीशन होने के बावजूद भी और इतने अच्छे एथलीट होने के बावजूद भी हमने गोल्ड जीता है। तो मुझे लगता है कि बस अपना 100% दो और किसी से घबराओ मत।
एक चीज बताएं, वो जो आपने दूसरा थ्रो फेंका है और उसके बाद जो सेलिब्रेशन करी है, पता था आपको ये बेस्ट गया है थ्रो? बिल्कुल जी, वो जो शरीर का एफर्ट लगता है तो पता लग जाता है कि हाँ ये थ्रो कुछ अलग है, और मुझे लगा था कि ये मेरा पर्सनल बेस्ट थ्रो है, लेकिन वो थोड़ा उससे कम था, और बस वो फील हो जाता है। और फिर उसके बाद जो अगले दिन सुबह फील हुआ कमर में, शोल्डर में, एल्बो में, तो वो, पर वही है कि अपने पास मेडल है तो ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, अब चाहे इंजरी हो जाती तो उसको भी देख लेते। अच्छा, आखिरी में आपके जो लंबे बाल थे, दैट मेन वाज वेरी फेमस। यहाँ आते आते मेरे को 2-3 शैम्पू वालों के फ़ोन आ गए हैं, जेल वालों के फ़ोन आ गए हैं कि नीरज के वो लंबे होंगे। एवरीवन वांट्स यू एज अ ब्रांड एम्बेसडर। जी मुझे लगता है कि मैं शुरू से ही 9-10 साल से लंबे बाल रख रहा था, और अभी वो तंग करने लगे थे। मैं 2-3 कंपटीशन खेल रहा हूँ, उसमें वो पसीना आ रहा था, आंखों पे गिर रहे थे, और मैंने वो सिर पे वो क्या पट्टा ही बांध के देख लिया, टोपी भी डाल के देख लिया, वो सब गिर जाता था लाइन से आगे। तो मैंने सोचा कि यार ओलंपिक है, ऐसा कोई स्टाइल बाद में हो जाएगा, गेम पहले है। नीरज, मैं क्या बोलूँ, you have made a hearts really grow fonder, you have made our chest swell with pride, और I think you are made for TV। जो आप है ना, अब मुझे नहीं लगता कि कोई टीवी वाला आपको छोड़ने वाला है। You're going to be inundated with phone calls, but thank you once again for a fantastic performance, the way he। एक सवाल मेरा भी है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, बहुत दूर दूर से चल के अपने खेल के क्षेत्र तक भी जाना पड़ता है, तो आप में से कोई भी इसका उत्तर दे सकता है, क्या क्या मुश्किलें आई और कैसे यहाँ तक पहुँचने का सफ़र पूरा हुआ? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सभी जितने भी खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं लगभग सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और सभी को ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि उनकी फैमिली का सबसे बड़ा हाथ होता है कि वो पैसे से चाहे उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो जब ये बोलते हैं ना कि तुम बस खेलो, कोई बात नहीं, रिजल्ट देखा जाएगा, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे लगता है कि वो जो एक स्ट्रगल होता है और वो जो कमी होती है पैसों की भी या स्टेडियम की, वो कहीं ना कहीं एक एथलीट में आग पैदा करती है कि हाँ हमारे पास इस चीज़ की कमी है और हमें मेहनत करके इसको पूरा करना है। मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि निचले स्तर से जो एथलीट, पिछड़े से पिछड़े क्षेत्र से भी एक जो जज्बा, जुनून और जीतने के लिए जो आग अंदर है, वही उसको इस मुकाम तक लाती है। और वहाँ पर कहीं ना कहीं बाकी स्तर पर फेडरेशंस हो, टॉप स्कीम हो, भारत सरकार हो, उसके बाद आगे ले जाने का काम भी उसके आगे किया जाता है। लेकिन इन खिलाड़ियों ने जो अलग अलग क्षेत्रों से, बहुत पिछड़े क्षेत्रों से भी आते हैं, गरीब परिवारों से भी आते हैं, लेकिन भारत के लिए मेडल जीतने में, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो जोरदार करताल ध्वनि के साथ इनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यू कैन टेक योर सीट। थैंक यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Mr. Kiren Rijiju ji, I told you right at the start कि इतनी जल्दी आपको तो हम जाने देंगे नहीं. So the final closing remarks, sir, it's over to you. ओलंपिक जो है दुनिया का सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा इवेंट है। ओलंपिक से बड़ा इवेंट दुनिया में और कुछ नहीं होते हैं। ओलंपिक से वापस आए हमारे जितने भी ओलंपियंस हैं भारत के, और ख़ास करके जो मेडल लेकर के आए हैं, नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, हमारे हॉकी के कैप्टन मनप्रीत, लवलीना और बजरंग, और हमारे बीच में आज नहीं है मीराबाई चानू और पीवी सिंधु, हम लोग उनको मिल चुके हैं। खेल मंत्री जी ने उनको रिसेप्शन करके उनको बात भी हो गया उनसे। और हमारे जितने भी लौटे हुए यहाँ आज के दिन में टोक्यो से वापस आए हमारे जो सुपरस्टार्स यहाँ बैठे हैं, भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बिहाफ से आज आपको स्वागत करने के लिए आए माननीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी, उनके खेल के राज्य मंत्री प्रमाणिक जी, हमारे खेल सचिव रवि मित्तल जी, हमारे युवा अफेयर्स के सचिव उषा शर्मा जी, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा जी, हमारे डीजी साई संदीप प्रधान जी, और जितने भी फेडरेशंस के यहाँ आए हुए, मैं देश के करोड़ों लोगों के तरफ से मैं जितने भी मेडल लेके आए हैं आप सबको अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमारे लिए एक गौरवपूर्ण एक क्षण है जिसको शब्दों में हम कह नहीं सकते।
These are moments where you cannot express the happiness in words. इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं आप, ज़बान पे इसको कुछ बोलने से काफ़ी नहीं होते, इतनी खुशी मिलती है। और जब हम लोग देख रहे थे आप लोग टोक्यो में आप लोग खेल रहे थे, हम लोग इतने हज़ारों किलोमीटर इतने दूर थे हिंदुस्तान में, लेकिन हम लोग का भी शरीर दर्द हो गया क्योंकि हम लोग भी खेल रहे थे आप लोग के साथ में जोश में, और पूरा सपोर्ट सुबह सुबह 5 बजे उठ करके, और प्रधानमंत्री जी से लेकर के हर एक बच्चे, गांव, शहर, हर एक कोने कोने पूरे भारतवर्ष में चीयर फॉर इंडिया कर रहे थे। खेल मंत्री जी तो पूरा चीयर फॉर इंडिया लीड करके कहाँ कहाँ उसने मैसेज को नहीं फैलाया। पूरा देश, ऐसा माहौल मैंने जिंदगी में देखा नहीं है जो इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में चीयर फॉर इंडिया के इस नारे के साथ पूरा भारत देश हमारे खिलाड़ियों के साथ खड़ा था। ये ऐसा पल है जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और जब खेल में जो खिलाड़ी खेलते हैं तो पूरा कंट्री यूनाइट हो जाते हैं। तो धन्यवाद आप लोगों को, आप लोगों ने हिंदुस्तान को मजबूत एक धागा में बांध के रखा, और आज आप लोगों ने जो कारनामा किया है, हम लोग सब पूरे भारतवर्ष बहुत ही गौरव महसूस करते हैं। आप लोग को शायद मालूम नहीं होगा, जब ओलंपिक तैयारी चल रही थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि खिलाड़ियों के लिए टोक्यो में खाना पीना से लेकर के आपका रहन सहन पूरा तैयारी की थी, लेकिन कोविड आते आते सारा प्लान में चौपट हो गया और स्पेक्टेटर्स के बिना ये ओलंपिक का आयोजन हुआ है। वरना आप लोगों के लिए क्या नहीं तैयारी की थी और भी, लेकिन अब ये पैंडेमिक महामारी तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी टेलीविजन के माध्यम से आप लोगों का जो कारनामा है, आप लोगों ने जो दमदार परफॉर्मेंस किया, सबने देखा है। ये महिला टीम, रानी रामपाल, उनके दोस्त, जितने टीम है, आप लोगों ने इतना रुलाया उस दिन हम लोगों को, लेकिन वो गर्व का आंसू थे। हम लोग बहुत प्राउड थे कि आप लोग मेडल नहीं लाए, लेकिन मेडल से बड़े आप लोगों ने पूरा हिंदुस्तान का दिल जीत लिया। और प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों से बात किया, वो वीडियो देख करके हर एक भारतीय ने रोया है, सबका आंसू बहा है, बहुत इमोशनल मोमेंट था। फिर बाद में धीरे धीरे हम लोगों ने सोचा कि आप लोग जो भी हो, आप लोगों ने इतिहास रचा है, 60 मेडल लेके आए हैं, वो भी 6 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा, रवि दहिया और बजरंग पुनिया, रेसलिंग में मनप्रीत टीम, हॉकी वाला लवलीना, ये बॉक्सिंग में मीराबाई, वेट लिफ्टिंग, पीवी सिंधु, बैडमिंटन में 6 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में मेडल लाना ये पहली बार हुआ है। और एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल लाना, तो मैं आज ये भी याद करना चाहता हूं कि मिल्खा सिंह जी का जब मेरा साथ बात हुआ था, उन्होंने ये बात उनके मुंह से निकली थी कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं ओलंपिक में एथलेटिक्स में मेडल लेके आया देखना चाहता हूं। तो मैं उस दिन नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक गोल्ड मारने के बाद उन्होंने अपना गोल्ड मेडल को मिल्खा सिंह जी के नाम में डेडिकेट किया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और बाद में हम जब मिल्खा सिंह जी के पास गए थे तो हम अनफॉर्चुनेटली उसका पार्थिव शरीर उनको लास्ट ट्रिब्यूट देने गए, वो जिंदा नहीं रहे, लेकिन इस ओलंपिक में भी उनका याद आते रहा। और आज जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा बोलने का समय नहीं है। आप लोगों को 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के लिए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इनवाइट किया है सारा हमारे ओलंपियंस को। इसलिए मेडल जीते ना जीते, लेकिन ओलंपिक तक पहुंचना, ओलंपिक में खेलना, ये बहुत बड़ी बात होता है, ये मामूली नहीं होता है। इसलिए कहता है कि ये मेडल जो है कोई सोने, चांदी और कांस, गोल्ड, सिल्वर मेडल, जो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जो है, ये नाम है, लेकिन ये बनते हैं खून, पसीने और आंसुओं से। इसलिए हम लोग कहते हैं कि मेडल्स आर मेड ऑफ ब्लड, टीयर्स एंड स्वेट्स। इसलिए आप लोगों को फिर से भारतवर्ष के पूरे देश के हमारे करोड़ों लोगों के ओर से आप लोगों को फिर से अभिनंदन। और साथ साथ जितने आपको चैंपियन बनाने में जो कोचेस है, फेडरेशंस के जितने भी टीम है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के टीम, जितने भी पर्दे के पीछे खड़े थे खिलाड़ियों को आज सुपरस्टार बनाने के लिए, उन सब पर्दे के पीछे जो लोग बैठे हैं, काम किया दिन रात, उनको भी मैं सैल्यूट करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
Thank you, Honorable Minister, for those encouraging words. अब इससे पहले कि हम कार्यक्रम को समाप्त करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा the women's hockey team led by Rani Rampal and Coach Marine, if you can just come up here for a photo with our dignitaries, and if I can request the three ministers, please, to stand here and get a picture with the women's team. पूरी महिला भारतीय हॉकी टीम को मैं निवेदन करूंगा कि आप अगर सामने आ जाएं यहाँ पर, जैसे मेंस टीम खड़ी थी शुरुआत में वैसे। रानी यहाँ पे